चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का 6.1 का जो स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से और सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने जो प्रीवियस क्लास में किया था उसके कुछ थोड़े से पार्ट रिवीजन में लेते हैं, कुछ थोड़े से पार्ट यहाँ पे और भी चीज़ें क्या यूज़ कर सकते हैं उनको थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सो प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने रिवीजन करने की अभी ज़रूरत है, मे बी लाइक आइडेंटिटीज़ एंड देयर इनवर्स रिलेशनशिप। तो लेट अस रिवाइज फर्स्ट देयर इनवर्स रिलेशनशिप, then after that we'll go for the identities. So as we know that inverse relationship, that is a sin theta inverse of cosec theta and cos theta inverse of sec theta and tan theta is inverse of cot theta. These were the basic inverse and their relationship between uh, 6 trigonometric ratios: sin, cos, tan, sec, cos and cot. Second part class, here we are going to do identities. Identities are, these are very important. Identities, these are very important. As we know that 1 plus tan square theta, that we had already proved over there, equals to sec square theta, and one more, 1 plus cot square theta equals to cosec square theta, and third, which is a very famous, that is a sin square theta plus cos square theta equal to 1. Student, we have discussed like in identities all trigonometric ratio have a square because we have solved using the squaring on both the side, and they have a particular, we have divided them by using the Pythagoras theorem like this. So let us use all these important relationship identities over there of this trigonometric ratio. So this one, question number 5 is given that over here. Let us solve it. Question number 5. So this question is very simple. If it is given that if tan theta equals to 1, then find the values of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta. Student, they have asked the values. First thing this. And when we have to find out the values, that we should know about the theta. What is the measure of this angle theta? Then we will substitute over here value of theta, we will substitute in this part, and we'll get the perfect answer over there. That means to find out values we should know about the theta. Here it is given that, given part is that tan theta equals to 1, and we know that tan theta equals to when theta equals to 45 degree from the table of standard angle, like 0 degree, 30, 45, 60 and 90. That means theta equals to 45. It means what, we have to take this value theta equals to 45 to find out the value of given expression. It is asked the value of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta equals to sin of 45 plus cos of 45 divided by sec of 45 plus cosec of 45. Simple way. Always students, when it is asked find out the value in trigonometric ratios, just go for the angle theta. Once you get the value of angle theta, then you are able to substitute this angle in given expression and find out the values of given expression or ratio. Sin 45, that we know, the 1 upon root 2 plus cos 45 again 1 by root 2. Now see over here, student. Sin 45 is 1 by root 2 and sin is the inverse of cosec and cos is the inverse of sec. That means if we do the reciprocal of their values, ultimately we will get the value of sec 45 and cosec 45 because angles are same. So sec 45, that means the inverse of cos,
तो cos is what 1 by root 2, तो root 2 का इनवर्स जो होगा it will become a root 2 only. And similarly for the cosec 45, and here it is the sin 45 1 by root 2, again for this the inverse will become root 2 only. So that means what, 1 by root 2 plus 1 by root 2 divided by root 2 plus root 2. Let us solve them. Cross multiply will get the root 2 plus root 2 whole divided by 2. This one is the first ratio, and this whole divided by 2 into root 2. This is your denominator. This part your numerator and this part is your denominator. So students, it is given that this will be again 2 root 2, this whole part divided by 2, and this whole ratio is divided by 2 root 2. It looks like this, student. Try to understand here. It's a very simple and very conceptual part. When you have a upon b and this whole divided by c, in such a case, what you have to do over here, a divided by bc, multiply c in denominator. And if you have a upon b, a upon whole divided by b upon c, now here a will multiply with c and upon b. These two are the very important concept, second one and this is the first one. Similarly, this become, it looks like a upon b and this whole divided by c. Now here c will multiply with b. So 2 into root 2 divided by 2 into root 2. So this values will cancel out and the whole answer will become 1 by 2. So this is the way to find the value of given particular trigonometric ratio. Hopefully you are getting this part. Come to the next, which is a very important, very important, student, for the standard 10th. It's a very basic part. But when you for the 11th standard and 12th standard, all these ratios, their relationship, their identities are used in the standard 11th and 12th also. And this trigonometry chapter is very vast chapter. Come to the question number 6, and that is a very important, and it is a proof part. For the proof part, students, we need to know their inverse relationship, their identities, and then we have to know how to apply it. That is a very important part. Applying is identity is another thing class. क्वेश्चन को समझना, उनको लेफ्ट हैंड साइड को समझना, राइट हैंड का साइड को समझना, फिर उनमें अप्लाई करना, कौन सा पार्ट प्रूफ करना है, क्या नहीं प्रूफ करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. और ये तभी आपको आएगा जब आप प्रैक्टिस बार बार करोगे, क्योंकि मैथ्स इज़ नथिंग बट ऑलवेज नीड्स प्रैक्टिस. अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, आप मैथ्स पे कमांड नहीं पा सकते. अगर एक बार समझो आपको आता भी है, नो डाउट, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक उसको मेमोरी में रख नहीं पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आने का मतलब ये है कि आप पूरा उसके डीप में जाना. और जब तक किसी सब्जेक्ट के डीप में नहीं जाओगे, तब तक सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस आता नहीं अपने ऊपर. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. क्वेश्चन सिंपल है क्लास, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप यूँ समझिए, वही अपने आइडेंटिटीज़, वही सब पार्ट है. वापस मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकेंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. थर्ड इज 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स क्या होता है, समटाइम्स यहाँ पे 1 प्लस कॉड स्क्वायर प्लस 1 दोनों का मतलब एक ही है. आप 1 को इस तरफ रखिए, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 करिए, या 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 करिए. आना तो 3 दोनों केस में है, ठीक है. इसके लिए आपको ये सब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो सब कुछ ठीक रहेगा. सॉल्व करते हैं इसको. अब देखो ये प्रूफ है. प्रूफ का मतलब, प्रूफ में हमेशा स्टूडेंट ध्यान देना कि 2 पार्ट होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल साइन होता है. इक्वल साइन का ये इंडिकेट करता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे तो या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड मिलेगा, और राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा. नाउ डिपेंड ये करता है कि आप चूज किसको करना है. हमेशा हमारे टीचर सिखाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड. क्यों ना RHS से राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड आया जा सकता है. अगर रास्ता A से B की तरफ जाता है तो B से A की तरफ भी आ रहा है.
वही रास्ता है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, पहले आपको मैं बताऊंगा एक तरीका क्या है। पहले आप दोनों साइड को ध्यान से देखिए, इसमें से स्मॉलर कौन सा है और बिगर कौन सा है। आप अगर इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो बिगर मतलब क्या होगा, उनमें ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पार्ट हो गए। और यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे तो ये क्या है, एक स्मॉलर पार्ट है, ठीक है, ये स्मॉलर पार्ट है। मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, आरएचएस में सिर्फ एक टर्म है, और यहाँ पे देखो आपको 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स अगर हैं हमारे पास, तो उनको हम पहले कंसीडर करेंगे, और 2 टर्म से 1 की तरफ जाना इजी होता है। मतलब ज़्यादा से कम करना इजी है, पर कम से ज़्यादा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप यूँ समझिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 2 टर्म्स है, अगर 2 को कैलकुलेट करेंगे एटलीस्ट सिंगल तो बना ही सकते हैं, कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन एक को एक्सपांड करना, उसमें और अपने तरीके के फॉर्मूले डालना, फिर उसमें और मल्टीप्लाई करना, ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। आएगा आंसर 100% आएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए होगा एज ए यू आर स्टूडेंट्स। तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको इजी में हो, वो चीज़ें नहीं करनी है जो चीज़ आप 12th के बाद करने वाले हो। वो अभी आप 10th के लेवल पे हो, तो आपको 10th लेवल के हिसाब से करनी है। 11th 12th में जाओगे तब आप उस लेवल पे सोचना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है ना, पहले आप उसको लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पार्ट आपका लेफ्ट हैंड। अब इसके इक्वल क्या करना है ना, इक्वल आपको यहाँ पे देते जाना है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर रहे हो, और इसी के इक्वल, मतलब अभी जैसे हमने यहाँ पे लिया है, मुझे ये पार्ट नहीं लेना चाहिए, LHS। तो आप यहाँ पे जो LHS पार्ट ले रहे हैं, ये LHS के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ना कि यहाँ से कहीं से इक्वल आ रहा है, ठीक है। अभी जो स्टेप लिखूंगा ना, ये प्रीवियस वाले के इक्वल हो रहा है, ऐसा समझिए। जो इक्वल साइन होते हैं प्रीवियस स्टेप के इक्वल होते हैं, तो दैट यू विल बी बेटर फॉर यू टू अंडर, ठीक है। तो फॉर दिस केस व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, देखो हमारे पास 2 टर्म है, एक में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, दूसरे में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, बट उसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हम इसको क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं। तो ऐसे केस में करना क्या है, आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इन, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसा, तो दिस बिकम 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हम ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस कॉस इंटू कॉस, दिस बिकम अ कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू कॉस, दैट इज अ कॉस थीटा। सिंपल, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमको लाना क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब क्या हो सकता है, 1 अपॉन कॉस भी आया तो भी हमारा आंसर चलेगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। मैं वापस यहाँ से आइडेंटिटी लिखता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। आपको दोनों ध्यान में रखना है, 1 अपॉन सेक आया तो कॉस, 1 अपॉन कॉसेक आया साइन, 1 अपॉन साइन आया तो कॉसेक, 1 अपॉन कॉस आया तो सेक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज द, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स ओवर हियर, थीटा सेम है दोनों में है, और दोनों में स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आइडेंटिटी में ध्यान से दोगे तो जो पहला आइडेंटिटी है काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो मैं पूरी की पूरी न्यूमरेटर पार्ट को 1 से रिप्लेस करूंगा, एंड दिस विल बिकम अ 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड वी नो दैट 1 अपॉन कॉस थीटा इज आवर सेक थीटा, एंड दिस सेक थीटा इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे एक रीजन डालें, यहाँ पे एक रीजन डालेंगे, सिंस रीजन क्या होगा, वही आपका आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका फर्स्ट प्रूफ है। तो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा प्रूफ को स्टार्ट में क्या चेक करना है कि इजी कौन सा है, और कहाँ से आप ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल कॉम्प्लिकेशन से सिंपल में लेके आ सकते हो। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट, फिर से आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जब आप चेक करते हो, तो पहले इसमें से बिगर और स्मॉलर चूज करो। मुझे इनके इक्वल 1 लाना है, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को, इसी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे फर्स्ट केस चूज करूंगा। ऐसे भी प्रूफ आएंगे स्टूडेंट कि जहाँ से आपको राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करोगे, आप बोलोगे यहाँ से इसको ले जाना सिंपल हो रहा है। आएंगे, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है 11th स्टैंडर्ड का जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा कैसे करना है उसको। लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल वे में करना क्या है आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी आपको वापस 1 पे दिख, कहीं तो 1 दिख रहा है, यस मुझे 1 दिखा, तो मैंने पास 1 के लिए 3 आइडेंटिटी हैं, तीनों वापस से लिखना स्टूडेंट्स, मैं बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ जो उसकी ज़रूरत है मैं वही लिखता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, चलो लिखा हूँ तो ये भी लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों आइडेंटिटी वापस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप चेक करिए, जो ब्रैकेट में दिख रहा है ए आइडेंटिटी यहाँ पे है कहीं पे, यस, एंड दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसके मल्टीप्लिकेशन में आई विल राइट ओवर हियर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ क्लास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड दीज आर इनवर्स टू ईच अदर, हमने पहले भी पढ़ा है, अगर इनवर्स हैं तो दिस लुक्स लाइक अ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ, या इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो कॉस स्क्वायर थीटा तो आपको आंसर 1 आता है, यही 1 आपका राइट हैंड साइड है। होपफुली यू आर गेटिंग। आराम से पढ़ो स्टूडेंट, कोई घाई नहीं है, आराम से सॉल्व करो, समझ के सॉल्व करो, लेकिन ये हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप समझ के करिए, समझ के करेंगे ना तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आ जाएगा, इससे और भी चीज़ें जनरेट होंगी आपके माइंड में और उसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। आप करके देखिए, आप समझ के करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टैकल कैसे करना है, यहाँ पे देखते हैं। वापस से रिलेशनशिप पे आते, वही बात फिर से, आपको शायद इससे फॉर्मूले मुझे बार बार लिखने से आपको याद हो जाए, मैं हर स्टेप में हर स्लाइड्स में फॉर्मूले डाल रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैं बार बार यही लिखूंगा स्टूडेंट, क्योंकि बार बार इसी का, पूरे क्वेश्चन में इसी का यूज है। रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और राइट है। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि आप बोलोगे सर अभी आपने बोला जहाँ पे स्मॉलर हो वो चाहे उस चीज़ को प्रूफ करना चाहिए, जहाँ पे बिगर हो उस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड उस वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सोल्यूशन में आपको स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, क्यों करता हूँ वो भी बताऊँगा। इट इज़ गिवन दैट, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ गिवन दैट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, आगे मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूँगा कि ताकि क्वेश्चन को इजीली आप समझ पाओ। अच्छा 1 अपॉन साइन सेक थीटा टैन थीटा, ये साइन कॉस में नहीं है, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जब साइन कॉस में नहीं होती ना तो पहले हमारा फर्ज होता है, हमारा काम होता है उसको सिंपलेस्ट बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि हमें वही करना है, सिंपल बनाने के लिए हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं RHS पार्ट को देखूंगा, यहाँ पे RHS पार्ट इस 1 अपॉन कॉस थीटा बनेगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा, और इसी फ्रैक्शन को जब आप ऐड करोगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा। अब आप ध्यान से LHS को देखो, ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है, ऑलरेडी है, मतलब चेंज किसको करना है, 1 प्लस साइन थीटा को, और एक बार और दूसरा काम है हमारा स्क्वायर रूट को हटा देना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 माइनस साइन थीटा अपनी जगह पे रहेगा, उसको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, लेकिन 1 प्लस साइन थीटा को हटाना है, उसकी जगह पे कॉस लेके आना है और स्क्वायर रूट को भी हटाना है। देखते हैं अभी क्या करना है। नाउ स्टूडेंट्स, क्या करना है इसके लिए, हम जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज से क्या होता है, जैसे मेरे पास a माइनस बी है, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे एक स्क्वायरिंग पार्ट में चेंज कर देगा, और स्क्वायरिंग पार्ट तभी इसलिए हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सभी आइडेंटिटी में स्क्वायर है, इसलिए मैं बार बार वर्ड आपको बता रहा था, स्क्वायर आपको ध्यान में देना है कि सभी आइडेंटिटी में स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तभी चेंजेस आ सकते हैं। मतलब 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे हम कोई स्क्वायर रख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है इसका अपोजिट साइन लेके हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, बस इसका होल स्क्वायर बनेगा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा
एज इट इज, 1 प्लस साइन थीटा विल बी एज इट इज। इसका जो अपोजिट साइन है इससे हमको रैशनलाइज, इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा इसका अपोजिट साइन बनेगा और दोनों में मल्टीप्लाई करना, दोनों मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑल्सो एंड डिनोमिनेटर, दे विल कम इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। सी चेंजेस कहाँ से करना है, कैसे पता चला, ये मैं थोड़ा सा RHS को एक्सपांड किया तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि यहाँ मुझे चेंजेस करने हैं। नाउ इनसाइड द स्क्वायर रूट, two numbers are same, I can write this as a 1 minus sin theta the whole square, and here I can write 1 minus sin square theta as because of this formula. A minus b into a plus b is a square b square. 1 minus sin theta into 1 plus sin theta is 1 square minus sin square theta. तो 1 square will be as it is 1. बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब थोड़ा सा आपको मैं और अच्छे पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ लेता हूँ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो इधर कौन बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसका मतलब मैं इस वैल्यू की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से। सो दिस विल बिकम अ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, यहाँ पे एक चाहिए तो आप रीजन डाल दो, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना ये सब आइडेंटिटी से आए हैं, कोई नए फॉर्मूले नहीं क्लास, ये सब फॉर्मूले आइडेंटिटी से आ रहे हैं, ठीक है। नाउ एक पार्ट मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, विच इज़ वेरी सिंपल है बट कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक पार्ट होता है। जितने भी मैथ्स में आपको जितना बेसिक आपको याद रहेगा, स्ट्रांग रहेगा ना, उतना मैथ्स आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको ईजी है भी होगा। स्क्वायर रूट के अंदर मैं दो नंबर का स्क्वायर लगता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका आंसर डायरेक्टली होगा ए अपॉन बी, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब 1/2, 2 कैंसल आउट होता है पावर, तो ए बचेगा, सेम बी के लिए बी बचेगा। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों को पावर को हटा देना है। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो पूरा पावर जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये पूरा पावर जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इनको सेपरेट करते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जब इनको आपने सेपरेट किया, हमें आंसर किस में चाहिए, सेक थीटा और कॉस थीटा में और टेन थीटा में। तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप चेक करोगे ये पार्ट हमने पहले भी सॉल्व किया RHS को लेके, हमको यही पार्ट मिला था, यस और नो, यही पार्ट मिला था। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सप्लेनेशन मैंने तो बहुत थोड़ा स्लो करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा नहीं कि फास्ट भागे, मुझे वीडियो को फास्ट भगाना है, लाभ 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 दुनिया भर का, ये ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं करना है। आप वीडियो को पॉज करके आप भगा के देख सकते हो, नो डाउट, बट ऐसा क्या होता है, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, तो थोड़ा सबकी कॉमन वे पे लेके चलना चाहता है। अगर आपको नहीं आ रहा है आप आराम से पढ़िए, अगर आपको आ रहा है वीडियो को आप फास्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई करता हूँ कि आपको पूरा चीज़ समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको डीप में बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं क्लास। ओके क्लास, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास अपने आप में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा इन माइनस कॉस थीटा, वन ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इन राइट हैंड साइड on right hand side tan theta into sec theta. Okay, so first step students, convert all ratio in sin theta and cos theta. जो sin theta cos theta में नहीं है उनको हम पहले पूरे रेशियो को sin and cos में चेंज करेंगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। इन लास्ट में हमें इजीली स्टेप खुद ही समझ में आ जाएंगे, हमें एग्जैक्टली प्रूफ के हिसाब से राइट हैंड साइड के हिसाब से हम इजीली अपने स्टेप को आगे फॉरवर्ड करेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द LHS पार्ट। LHS part is in one bracket sec theta minus cos theta, in another bracket cot theta plus tan theta. Now next step students, sec theta minus cos theta में इसको मैं लिखूंगा 1 upon cos theta minus cos theta, this one is already है, और यहाँ पे लिखेंगे cos theta divided by sin theta, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा है तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एंड साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। सो
अब इनको हम जो हमें जिस टाइप का दिख रहा है हम उसको सॉल्व करेंगे एज पर गिवन जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो रूल्स है उसके बेस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाइक दिस। ठीक है, ये पार्ट। अब आपको क्या चेक करना है कि हमें सिर्फ चाहिए कि tan थीटा इंटू सेक थीटा, ये मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए, मतलब हमें लाना साइन कॉस में है, बाद हम इनको tan सेक में चेंज करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, हमको ये भी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस को इधर में लेके आया तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई कैन रिप्लेस दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा एग्जैक्टली। तो मैं इस जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रखूँगा और यहाँ होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, और ये पूरा वैल्यू आप देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1। देखो एक ही आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हो रहा है, दिस इज द 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट देखो ये चीज़ ना ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट सिर्फ 6 रेशियो में चलता है, और पूरा का पूरा रेशियो सम आइडेंटिटी, इनका इन्वर्स रिलेशन, इनका इंटर रिलेशनशिप, इसी पे पूरा प्रूफ होता है। बस हमें थोड़ा सा अलजेब्रा अप्लाई करना होता है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, देन क्यूब रूट, क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सब थोड़े से। ओके स्टूडेंट्स, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा। अब हमको इनको वापस सिंप्लीफाई नहीं करना है, इनको क्या चाहिए एग्जैक्टली पर tan। सो स्टूडेंट्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नाउ यू कैन सी ओवर हियर tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको इससे रिप्लेस करेंगे, एंड सेक थीटा हमको ये पता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमारा हो गया, दिस वन इज आवर राइट हैंड साइड। ये सिंपल प्रूफ होते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, इजिली आप कर पाओगे, टफ कुछ भी नहीं है ना। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आप ही करोगे एज अ होमवर्क, और मुझे आप कमेंट में करके बताओगे। प्रीवियस लेक्चर में किसी ने बताया है, बच्चों ने काफ़ी अच्छा उन्होंने सॉल्व किया, जिसमें साइन एंड कॉस की शायद वैल्यू पूछी गई थी, 7/41 लाइक दिस, ऐसे उसके साइन एंड कॉसेक की वैल्यू पूछी गई थी, जिनमें आंसर थे 7/41 एंड 41/7 रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। अभी वापस आप देख लो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में 6 में साइन कॉस नहीं है, तो पूरा का पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, आप उसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो दिस इज द आवर लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, वी कैन राइट दिस साइड में यहीं पे लिखता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ फर्दर कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स, 1 minus their denominators are equal, so we can add them directly. So this is the cos theta, and this will become a cos theta divided by 1 minus sin theta. अब इसके आगे क्या, ये तो हमें सिर्फ cos theta अपॉन 1 minus sin theta आ रहा है, हमें आंसर चाहिए sec theta प्लस tan theta। Is that clear? सो स्टूडेंट्स इसके दो मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, जो इजी आपको लगेगा आप वो मेथड कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए आपको करना क्या है, इस पार्ट को रैशनलाइज कर दो, क्योंकि देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, 1 माइनस साइन थीटा जो है ना, इसको, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज कर देते हैं। सो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई क्या करूँगा, रैशनलाइज का मीनिंग पहले मैंने बताया, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या करोगे, 1 प्लस साइन थीटा। इसके अपोजिट साइन को लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। आप जिसको रैशनलाइज करना चाहो, न्यूमरेटर को करोगे तो न्यूमरेटर का अपोजिट साइन लेना है, डिनोमिनेटर को करना है तो डिनोमिनेटर। मुझे यहाँ डिनोमिनेटर को करना था, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पे देखोगे आप RHS साइड में, इसके डिनोमिनेटर में कुछ यहाँ पे है ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, बट वो हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं चाहिए साइन कॉस से रिलेटेड। So I'll multiply over here, this will become your cos theta plus 1 plus sin theta, and here it will become what, 1 minus sin square theta. Now you can say students,
कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन दिस बिकम अ कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस यहाँ से पूरा कैंसल आउट हो जाए। अगेन राइट डाउन इन सेपरेट पार्ट, सेपरेटली आप उनको लिख सकते हैं। अब जब इनको सेपरेट लिखेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन 1 अपॉन कॉस थीटा इज नोन एज व्हाट, सेक थीटा, साइन अपॉन को कॉस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ये एक मेथड हो गया आपको सॉल्व करने का, कन्वर्टिंग इन टर्म और ऑल टर्म्स इन साइन एंड कॉस। बट स्टूडेंट्स अब आपको जो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा वो भी काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल है। सो क्लास इसका जो सेकेंड मेथड है उसको सॉल्व करते हैं, सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। LHS पार्ट दिया हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके लाइक दिस। अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है एंड वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा में पूरा एक क्वेश्चन है सेक एंड टेन में, तो हमारे पास आइडेंटिटी, क्यों ना आइडेंटिटी का यूज डायरेक्ट किया जाए। तो 1 इज रिप्लेस्ड बाय 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। क्यों ना मैं इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूँ 1 के साथ। तो 1 कैन बी रिटेन एज ओवर हियर इन न्यूमरेटर पार्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एंड दिस लुक्स लाइक कैसा दिख रहा है, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। द फॉर्मूला इज दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो लेट अस एक्सपांड इट, इसको एक्सपांड करते हैं। सो दिस बिकम एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ये पार्ट, एंड होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करोगे ये दोनों जो वैल्यू है सेम है, ये ब्रैकेट के वैल्यू सेम है, तो हमारा जो आंसर होगा डायरेक्ट आप देख पा रहे हो, सिर्फ 2-3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन, ये हमको चाहिए था। देखो ये हमारा जो है ये हमारा आंसर पार्ट है। सो ऐसी टाइप को आपको क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए जब आपको आइडेंटिटी पता होगा कि सेक थीटा टेन थीटा आ गया तो 1 भी है, तो क्यों ना इसको रिप्लेस कर लिया जाए। अच्छा समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ये वाले पार्ट का यहाँ पे प्लस लेके सेक थीटा प्लस टेन रेसिप्रोकल करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 रखेंगे। सब कई मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए।